Good morning, students. Welcome to another lecture of GK. Lesson number 21, Branches of Science. Here, descriptions of different branches of science are given. We have to match the correct description with the name of the branch of science. Now, the first one, the study of the diagnosis and treatment of skin disorders. This branch of science is called dermatology. Second one, the scientific study of the moon. This one is selenology. Third one, the study of birds. This branch of science is called ornithology. Fourth one, the study of the relation of organisms to each other and their environment. Now, this science is called ecology. Fifth one, the study of the treatment of the disorders of the eye. This is called ophthalmology. Sixth one, the study of the atmosphere and weather predictions. This one is called meteorology. Seventh one, the study of the uses and effects of medicine. Now, this science is called pharmacology. Eighth one, the study of human beings. This branch of science is anthropology. Ninth one, the study of the mind and behavior. This one is psychology. And the last one, the study of the past. This one is called archaeology. Now, children, we come to the footnote. And oologist is involved in the study and collection of birds' eggs. Now, that means the science of studying birds' eggs is called oology. Now, children, we come to lesson number 22, which is codes. That means we have to apply our reasoning. Now, children, first one. In a certain code language, horse is written as FQPUC. Then how will you write basket? Children, in this exercise, first we have to look how horse has been written, and we have to first decode it, and then we have to answer the question which has been asked in that particular statement. Now here horse is written as FQPUC. Now we will have to write basket in that same code which they have applied for horse. Now children, we can solve this. You can see how I have done it. Children, I have written all the English alphabets from A to Z. You can see the answer key. And now for horse, HORSE. For H, they have written, in the question it is written F. That means they have skipped G and written F. इसमें H के लिए F का यूज किया है. उन्होंने क्या किया, वो पीछे की तरफ गए हैं, G को छोड़ करके F लिख लिया. फिर O, H के बाद O के लिए उन्होंने क्या किया, जहां पे इंग्लिश अल्फाबेट में O लिखा हुआ है, P को छोड़ के आगे बढ़ गए हैं Q.
फिर आर के लिए क्या किया है, अब इन्होंने क्या किया, एक लेटर को छोड़ के वो पीछे चले गए हैं। आर से पहले क्यू आता है, क्यू को छोड़ दिया, उससे पहले पी आता है तो पी लिख लिया। फिर उसके बाद हॉर्स के एस के लिए क्या किया इन्होंने, टी को छोड़ दिया, यू लिख लिया। और लास्ट ई के लिए क्या किया, डी को छोड़ दिया, सी पे पहुंच गए। मतलब एक बार वो पीछे जा रहे हैं, एच के लिए पीछे चले गए, ओ के लिए एक लेटर छोड़ के आगे बढ़ गए, फिर आर के लिए एक लेटर छोड़ के पीछे चले गए। तो एक एक लेटर छोड़ के वो पीछे फिर आगे, इस तरह से इन्होंने इसकी कोडिंग की है। अब पहले हमने इस कोड को डिकोड कर दिया, अब हमें बास्केट कैसे लिखना होगा। अब बास्केट के लिए बी से एक लेटर पीछे, बी से पहले ए आ रहा है और ए से पहले कुछ है ही नहीं, इसका मतलब हमें जेड ले लेना पड़ेगा क्योंकि लास्ट अल्फ़ाबेट होता है जेड, तो हमने बी के लिए जेड लिया। फिर बास्केट की स्पेलिंग में बी के बाद आता है ए, ए के लिए हम क्या लिखेंगे, बी को छोड़ के सी। फिर एस के लिए, एस के लिए इन्होंने क्या किया है, एस के लिए हमें आर को छोड़ के क्यू पीछे की तरफ चले गए हैं। के में हम क्या करेंगे, एक लेटर को छोड़ के आगे चले जाएंगे। के बाद एल आता है, उसको छोड़ दिया, उसके बाद एम आता है तो एम हमने लिख लिया। अब बास्केट के स्पेलिंग में के बाद आता है ई, ई में हमने क्या किया, डी को छोड़ दिया, फिर सी लिख लिया, पीछे चले गए। अब बास्केट के टी के लिए हम एक लेटर छोड़ के आगे चले जाएंगे। टी के बाद यू आता है, उसको छोड़ दिया, वी लिख लिया, तो हमारा कोड बन गया ZCQMCV। अगर बेटा तुम इसको ध्यान से देखोगे, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस। किसी और भी, कोई भी और दूसरा लेटर लेकर, वर्ड लेकर के उसका भी तुम कोड लिख सकते हो। नाउ चिल्ड्रन, द सेकेंड वन, in the word apple, how many letters occupy the same position as they occupy in the English alphabet? Now children, in the word apple, P जो है वो 2 times आता है. So the answer is 2. Now the third one, if you take out the name of an animal from the word pirate, the name of which desert will be left? Now children, word इन्होंने दिया है pirate. Pirate मतलब होता है लुटेरे. अब पायरेट में से एनिमल का नाम हटाने को कहा है. इफ वी लीव आउट रैट, अब देखो मैंने रैट को सर्कल कर दिया, तो कितना क्या बचा, कौन से डेजर्ट का नाम बचा हमारे पास, पाई. पाई जो है वो डेजर्ट का नाम है, विच इज अ बेक्ड डेजर्ट. तुम्हें पता होगा, चोको पाई तुमने खाया भी होगा. सो द आंसर इन द थर्ड क्वेश्चन इज पाई. Now the fourth one, if the word abolishment is arranged in an alphabetical order, which letter would be right in the middle? अब abolishment word, इसको तुम पहले लिख लो. तुम आंसर की मेरा देख सकते हो, इसमें मैंने इस वर्ड को पहले लिख लिया, फिर इसको मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज किया. मतलब सबसे पहले ए, फिर बी, फिर अब स्पेलिंग में सी डी है ही नहीं, फिर मैंने ई लिखा है. ई के बाद एफ जी है नहीं स्पेलिंग में, तो हमने उसके बाद एच है तो एच मैंने लिख दिया. फिर उसके बाद एच के बाद जे के नहीं है तो मैंने नहीं लिखा उस स्पेलिंग, उस अल्फ़ाबेट को. एल है तो एल लिख लिया. फिर एम भी है, एन भी है स्पेलिंग में, अबॉलिशमेंट में ओ भी है, तीनों को मैंने लिखा. फिर पी क्यू आर नहीं है, फिर एस उसको लिख लिया, फिर टी. अब एबॉलिशमेंट में 11 अल्फ़ाबेट्स हैं, और जब मैंने उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया, इसमें भी 11 ही अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए.
अदरवाइज इट मीन्स वी हैव स्किप्ड वन अल्फ़ाबेट। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है विच वुड बी राइट इन द मिडल, बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। अब 11 अल्फ़ाबेट्स में अगर दोनों तरफ हम 5 छोड़ दें तो बीच में हमारा एल रहता है, तो हमारा आंसर एल है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इफ यू टेक आउट द वर्ड लिस्ट and then the name of an ornament from the word blistering, how many letters will be left? अब blistering word को लिख के उसमें से list word को हटा दो। फिर उन्होंने एक ornament का नेम बताया है जो blistering word में है, which is ring। अब ring को भी हटा दो और list और ring को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचा? B और E। That means 2 letters बच गए। So our answer is 2. Next question, sixth one. In the name of how many months will you find only one vowel? अब months 12 months होते हैं हमारे पास, जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि 1 वॉवल वाले मंथ कौन से होते हैं। अब तुम इसको जनवरी से चेक कर सकते हो। वी गेट 3 months, मार्च, मई एंड जुलाई। मार्च में ए एक ही MARCH, ए एक वॉवल आ गया। मई मंथ में ए आ गया। जुलाई में यू आ गया। बाकी जितने मंथ्स हैं उसमें 1 से ज़्यादा वॉवल है। इज इट ऑल राइट? नाउ आवर आंसर बिकम्स 3। तो 3 मंथ्स हैं जिनमें एक वॉवल है, मार्च, मई एंड जुलाई। सेवेंथ वन, which letter will logically replace the question mark in the following sequence? अब अगर तुम इसको देखो, सीक्वेंस दिया हुआ है हमारे पास ZAYCXE क्वेश्चन मार्क VIUK। अब पहला वाला Z लिखा है और A लिखा है, मतलब लास्ट और फर्स्ट लिख लिया। Z लास्ट में आता है, फिर A लिख लिया। सेकेंड वाले में Y, Z से पहले Y आया वो लिख लिया, और C लिखते समय उन्होंने B को छोड़ दिया, मतलब अब एक एक छोड़ के कर रहे हैं वो। फिर और पीछे से जब कर रहे हैं तब वो छोड़ नहीं रहे हैं। Y के बाद X आ रहा है तो X इन्होंने लिखा है। फिर C के बाद D को छोड़ा, E को लिख लिया। उसके बाद X से पहले आ रहा है W, W लिख लिया, और E के बाद F छोड़ के G। नेक्स्ट है W से पहले आ रहा है V, उसको लिख लिया। G के बाद H छोड़ के I। फिर V से पहले आ रहा है U, और उसके बाद U के बाद इधर जो हमने I छोड़ा था J छोड़ के K। इसका मतलब हमारा जो ये सीरीज बना WG का बना। सो आवर आंसर इज WG। In a certain code language, if language is written as LEAGNAGU, how will you write semolina in that language? अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, इस कोड को डिकोड करने के लिए मैंने क्या किया है, लैंग्वेज को नंबरिंग कर दिया है 1 से लेके 8 तक। यू कैन सी। उसके बाद ये बताया है कि लैंग्वेज का इनका कोड है LEAGNAGU। अब इसको इन्होंने कैसे बनाया है, L के लिए ऊपर देखो, L के लिए 1, E के लिए जो लास्ट वाला पीछे की तरफ, अब आ जाओ, पहले तो उन्होंने फर्स्ट वाला लिया है फिर लास्ट वाला। E के लिए 8, उसके बाद है A के लिए 2 कोड है, एक तो 2 दूसरा 6। अब एक बार हमें पहले शुरू से लेना है, एक बार लास्ट से लेना है, तो हमने 8 पीछे से लिया था, अब
ए के लिए जो कोड है वो शुरू से लेंगे, वो 2, ए का कोड 2 बन गया। फिर जी के लिए अब पीछे से लेंगे, वो 7 हो गया। फिर एन हम आगे से लेंगे जो 3 हो गया, और वैसे एक ही एन है। फिर नेक्स्ट है ए के लिए पीछे से लेंगे जो कि 6 हो गया। फिर जी के लिए अब आगे से लेंगे जो कि 4 हो गया, और फिर लास्ट में यू तो एक ही है, वो 5 हो गया। अब हमारा ये कोड बना 1827365। अब हमें इस लैंग्वेज में सेमोलिना लिखना है। अब सेमोलिना को भी मैंने नंबरिंग कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सेमोलिना को हम जब इस कोड में डालते हैं, 1 की जगह हम एस लिखते हैं, 8 की जगह हम ए लिखते हैं। वो कहाँ से लिया हमने? यहाँ से। फिर एम की जगह हमने 2 की जगह हमने लिखा है ई, जो हमें सेमोलिना वाले स्पेलिंग से मिला, ई लिखा। फिर 7, सेमोलिना के स्पेलिंग में 7 कहाँ है? एन लिख दिया। फिर 3 की जगह पे हमने लिखा एम। फिर 6 कहाँ पे है? आई पे, आई लिख दिया। फिर 4 कोड पे है, 4 के लिए है ओ। फिर 5 के लिए है एल। तो हमारा आंसर बना SAENMIOL, मतलब डी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर बना। मुझे लगता है तुम्हें रीजनिंग का अगर तुमने ठीक से सुना हो तो तुम्हें ये कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू द फुटनोट। The Morse code is a kind of code language that was used widely in telecommunication. ये मोर्स कोड क्या है? ये एक कोड लैंग्वेज है जो कि टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता था। इट वॉज ऑल्सो यूज्ड इन एविएशन एंड बाय द नेवी। इसको एविएशन में भी, एविएशन मीन्स जो प्लेन्स चलते हैं, उन जो एरोप्लेन्स चलाते हैं वो लोग भी यूज करते थे, और नेवी जो सी में, ओशंस में शिप्स यूज करते हैं, वो लोग भी इस मोर्स कोड को यूज करते थे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोर्स कोड इज SOS। शायद तुमने सुन रखा हो SOS, सेव आवर सोल। डॉक्टर्स कभी कभी मेडिसिन के रिसीट पे लिख के देते हैं SOS, मीन्स उस मेडिसिन को अगर जरूरत पड़े तो तुम लोगे, अदरवाइज नहीं। सेव आवर सोल। Now we come to lesson number 23. This is brain teasers. This is again an interesting chapter. Answer these questions. A dog had 3 puppies named Tommy, Pommy and Johnny. What was the mother's name? अब इस सेंटेंस में देखो, नेम के बाद फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। यहाँ पे बता दिया है कि मदर का नाम जो है वो वॉट था। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क होता तब तो क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहाँ पे वॉट जो है वो मदर का नाम है। ए बॉय एंड अ गर्ल बोर्न ऑन द सेम डे ऑफ द सेम ईयर विद द सेम पेरेंट्स आर नॉट ट्विन्स। हाउ इज दिस पॉसिबल? अब एक साल में एक ही डे में सेम पेरेंट्स के एक बॉय और एक गर्ल हुआ, वो ट्विंस नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ट्विंस ना हो करके ट्रिपलेट्स या मोर, 3 बेबीज एक साथ बॉर्न हुए हो या उससे ज़्यादा, तभी पॉसिबल है। इफ अ मैन्स पीकॉक लेड एन एग जस्ट 6 inches inside his neighbor's plot, who will legally own the egg? अब क्वेश्चन में बोला है कि पीकॉक ने जो एग दिया है
ले किया, वो 6 इंचेस इनसाइड हिज नेबर्स प्लॉट है, तो वो एग कौन लेगा? इफ यू सी द क्वेश्चन केयरफुली, you will find peacocks do not lay eggs. Peahens do. कॉक जो है वो एग ले नहीं करता बल्कि हैन देता है, तो पीकॉक नहीं देगा एग, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसने एग ले किया हो और उसके नेबर में 6 इंचेस चला गया हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, बिकॉज पीकॉक्स तो हैंस एग्स ले ही नहीं करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, Which of the following letter designs is not like the other 5? अब कुछ लेटर्स दिए हुए हैं Y, E, N, F, A, Z। अब तुम्हें बताना है कि कौन सा वाला लेटर दूसरे जो लेटर्स दिए हुए हैं उनसे अलग है। इसमें आंसर E है, बिकॉज E हैज़ गॉट 4 लाइन्स। 4 लाइनों को ज्वाइन करेंगे तो E बनता है, बाकी सब में 3 लाइन्स है, Y में, N में, F में, A में, Z में। नेक्स्ट वन, Mohan and his mother and father went out in the rain, but only 2 of them got their hair wet. Why? अब मदर, फादर और मोहन तीनों रेन में गए हैं, लेकिन उसमें से 2 के बाल भीगे हैं, तीसरे का नहीं भीगा। Why? Because one of them was bald. जब सिर पे बाल ही नहीं होंगे तो भीगेंगे कैसे? Now we come to question number 6. A boy and a doctor were fishing. The boy is the doctor's son, but the doctor is not the boy's father. Who is the doctor? अब एक बॉय और एक डॉक्टर फिशिंग के लिए गए। अब वो जो बॉय है वो डॉक्टर का सन है, लेकिन वो जो डॉक्टर है वो बॉय का फादर नहीं है, तो फिर वो डॉक्टर कौन है? तो फिर वो उसकी मदर है, द बॉयज मदर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच वर्ड इफ प्रोनाउंस्ड राइट इज रॉन्ग बट इफ प्रोनाउंस्ड रॉन्ग इज राइट? कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको तुम अगर राइट प्रोनाउंस करते हो तो वो रॉन्ग हो जाता है, लेकिन रॉन्ग प्रोनाउंस करो तो वो राइट हो जाता है? तो वो वर्ड रॉन्ग ही हो सकता है, क्योंकि रॉन्ग वर्ड को अगर तुम राइट बोलोगे तो वो तो गलत है। WRONG को तो तुम्हें रॉन्ग ही पढ़ना पड़ेगा। Is it not interesting? Yes, now we come to the footnote. Our brain's biggest enemies are Alzheimer's, Huntington's disease, and multiple sclerosis. These diseases harm our brain by making it unable to think, reason, and remember. ये कुछ ब्रेन डिजीजेस के नाम दिए हुए हैं जो हमारे ब्रेन को सोचने समझने नहीं देता है। Now you have to remember the names of these diseases which are harmful for our brain, which does not allow us to think, remember, or reason. Now children, we come to lesson number 24. Non-verbal reasoning. This is again an interesting lesson. Solve these problems. अब फर्स्ट वाले को देखो, पहले डी लिखा है, फिर एल, फिर यू, ई, पी, फिर क्वेश्चन मार्क। अब अगर तुम डी से एल तक पहुंचो तो तुम्हें ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, मतलब 7 लेटर्स को छोड़ के फिर एल मिलता है। ठीक है, 7 लेटर को छोड़ के 8th वाला एल है। अब नेक्स्ट जब यू आया है तो एल से जब हम काउंट करते हैं तो 8 लेटर्स को छोड़ के 9th लेटर यू मिलता है हमें। इन द सेम वे यू से जब हम काउंट करते हैं 10 लेटर्स, 9 लेटर्स को छोड़ के 10th वाला ई मिलता है। अब यू में जब हम काउंट करेंगे यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, जेड के बाद हमें फिर ए से शुरू कर देना है। ए, बी, सी,
डी हो गया 9th, फिर 10th वाला आ गया हमारा ई। नेक्स्ट वाले में ऐसे करके एक एक करके बढ़ रहा है। 7 लेटर्स के बाद 8th वाले को लिया, एल हो गया। 8 लेटर्स के बाद 9th वाले को लिया, यू हो गया। यू से फिर हमने 9 लेटर्स को छोड़ के 10th वाले को लिया तो ई हो गया। फिर ई से हमने काउंट किया 10 लेटर्स छोड़ के 11th वाला पी है। फिर पी से जब हम 11 के बाद 12 आता है, एक एक करके बढ़ रहा है, 8 9 10 11 12। अब हम पी से जब हम काउंट करेंगे 11 लेटर्स छोड़ के पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए जो है हमारा 11 हुआ, ए के बाद 12th वाला बी होगा, तो हमारा आंसर बी है। एक एक करके बढ़ गया लेटर और उसके बाद जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें आंसर बी मिला। नेक्स्ट सेकंड वन, विच सेगमेंट विल फिल द गैप टू कंप्लीट दिस पजल। अब चिल्ड्रन अगर इस पेज को जो इन्होंने पिक्चर बना दिया है, इन्होंने स्क्वायर को अगर तुम फोल्ड करोगे, हाफ करोगे, फिर उसके बाद अगेन 4 पार्ट्स में उसको फोल्ड कर लोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो ई फिगर दिया हुआ है हमारे पास, उसको अगर हम इसमें लगाएं तो हमारा गैप जो है वो कंप्लीट होता है, पजल कंप्लीट होता है। अब थर्ड वाला, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो बताना है। फर्स्ट नंबर दे हैव गिवन इज 5, नेक्स्ट 12, फिर 26, फिर 54, फिर क्वेश्चन मार्क। नाउ हाउ टू गेट द आंसर। नाउ 5 को अगर हम डबल करें 10 हो जाता है, प्लस 2 इट गिव्स 12। अब 12 हमारा आ गया, 12 तो इन्होंने लिख के ही दिया है, 12 को हम डबल करेंगे 24 हुआ, प्लस 2 26 आ गया। अब 26 को हमने डबल किया 52, प्लस 2 किया 54, फिर 54 को डबल किया 108, प्लस 2 110, तो आवर आंसर इज 110। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच पिक्चर क्यूब डज दिस शेप मेक। अब बेटा इस पिक्चर क्यूब को ये एक पेपर पे अगर तुम लिख के देखो, एक ऐसे बॉक्सेस बना लो फोल्ड करके, फिर अगर तुम इसको बॉक्स फॉर्म में, क्यूब फॉर्म में रखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि हमें ए आंसर, ए वाला जो पिक्चर क्यूब है वो आंसर मिला। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, विच शेप विल यू गेट बाय जॉइनिंग दीज फिगर्स। अब 4 फिगर्स दिए हुए हैं तुम्हारे पास, अब इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें बी पिक्चर मिलता है। नेक्स्ट, प्ले सुडोको, Tetris and jigsaw puzzles to improve your non-verbal reasoning power. Yes, children, these are some of the games which you keep playing at your free time. You will surely improve your reasoning power. So, you have been advised to play these games. Now, children, you will do all these work and then send your work to me for checking. Thank you, children.